Hello everyone, how are you? I hope all of you are good, you are studying well, and you are giving you 100%. So today, this video is for class 10 students who are going to give their board exam just after 20 days, and this video is all about how to cover your English, Hindi, Maths, Science, and SST in these 20 days. So this is the first part of the video. In this video, we will only talk about English and Hindi, that how we can cover English and Hindi in this coming 20 days, and how we can make use of this 20 days effectively, how we can take the maximum output from these 20 days. So we will talk about all these points in this video, and this video is basically for those students who have not studied well throughout the year, or for those who are just scoring 40% 50% in pre-boards, and how they can increase their overall percentage by 80% or 70%. Or for example, if someone who is scoring 40%, then how he or she can score 70% or 80%, or if someone is scoring 50% 60%, then how he can score 70% 80% 85%. See, I cannot give you false promise that if you are scoring 30% or 40% now in pre boards, then you can score 90% in boards. So it is practically not possible, क्योंकि मान के चलिए अगर आप साल भर नहीं पढ़े तो बस 20 दिन में क्या आप 90% ला सकते हैं? नहीं, practically it is not possible. Even if you give 12 hour 15 hour 16 hour, then also it will be an difficult. I would not say impossible, because see, nothing is impossible, but still I would say that scoring 90% from 30% in 20 days, it is not practically possible. So you need to analyze yourself that where you stand, और उसके हिसाब से ही आपको अपना प्लान बनाना होगा, अपना रूटीन बनाना होगा, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना होगा, सब वो आपको उसी बेसिस पे बनाना होगा कि आप कहाँ अभी लाइक कर रहे हैं. आपने प्री बोर्ड्स दिया होगा, मार्क्स आया होगा, तो किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिला, ये आपको एनालाइज करना होगा, और उसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना होगा. तो मेरा नाम शुभम है, एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. सो विदाउट डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. We have 20 days, and in 20 days, if you will give daily 8 hours, so we will have 160 hour. So 160 hour is, I would not say it is more than enough, but it is enough to increase your overall percentage by 40 to 30%. तो लेकिन ये है कि डेली 8 घंटा देना होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए अगर आप शुरू में हमसे पूछते हैं कि मतलब कितना घंटा देना होगा मतलब प्रिपरेशन के लिए, तो हम हो सकता है उस टाइम बोले होते कि मतलब 5 घंटा 6 घंटा काफ़ी है, लेकिन अभी आपको 8 घंटा डेली देना होगा. कैसे 8 घंटा डेली देना होगा? 1 घंटा इंग्लिश में, 1 घंटा हिंदी में. इंग्लिश और हिंदी में 1 आवर क्यों कह रहे हो वो भी बताएगी आपको. 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा साइंस, तो कितना हो, 2 + 2 4 +1 5 +1 6. और 2 घंटा 1 घंटा SST में, और 1 घंटा अगर आप चाहें तो किसी और सब्जेक्ट में दे सकते हैं. लेकिन मान के चलिए इंग्लिश में भी और ज़्यादा ही टाइम देना होगा, 1.5 आवर और 1 आवर 45 मिनट्स ऐसा देना होगा. इतना ज़्यादा टाइम क्यों देना होगा वो भी बताते हैं. क्योंकि सी, English and Hindi, these are the two subjects which are like friends with benefits. Okay, why friends with benefit? Because you do not need to put much effort in this English and Hindi. If you have studied nothing throughout the year in English and Hindi, but then also you can score, I would say, approximately 80%, minimum 80% you can score in these 20 days only. Okay, so if you have studied nothing, then I am telling you can score 80% or 85%, and if you have studied little bit 40% 50%, then easily you can score more than 90%. लेकिन वो ये बात मैथ्स साइंस SST के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर आप साल भर कुछ नहीं पढ़े या फिर 20% पढ़े हैं, तो मैथ्स में 80% 90% लाना 20 दिन में पॉसिबल नहीं है. ना ही साइंस में पॉसिबल है, ना ही SST में. लेकिन इंग्लिश और हिंदी क्या है ना, मतलब इसमें ज़्यादा एफर्ट देना नहीं होता है. थोड़ा सा एफर्ट दीजिए और ये आपको मतलब ज़्यादा आउटपुट देगा. कैसे पढ़ना है इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों का जो टाइम टेबल, मतलब जो क्या कह सकते हैं, जो उसका स्ट्रैटेजी है वो आपको मोर और लेस सेम ही होगा, क्योंकि दोनों का जो पैटर्न है ना वो दोनों सेम ही है दोनों का. तो देखिए, इंग्लिश में हम लोग क्या करना है. इंग्लिश में बेसिकली वी हैव 2 सेक्शन, लिटरेचर एंड लैंग्वेज. लिटरेचर इज ऑफ 40 मार्क्स, सेम लैंग्वेज भी कितना है, 40 मार्क्स का है. तो आपको एनालाइज करना होगा कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स आप लोग ला सकते हैं, तभी आपको मतलब मार्क्स. देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मिनिमम 80 मार्क्स तो आपको लाना ही है, और 80 मार्क्स मतलब आपको कहीं नहीं गया, अभी भी कहीं नहीं गया, 20 दिन अभी है ना, तो आराम से 80 मार्क्स आएगा. कैसे आएगा वही देखना है हम लोग को. तो देखिए, लिटरेचर है 40 मार्क्स का,
लैंग्वेज भी है आपको 40 मार्क्स का। तो इसमें लिटरेचर में आपको अगर मान के चल रहे 30 मार्क्स मिलता है, और ग्रामर में आपको अगर मिलता है 35 मार्क्स, तो हो गया 65, और स्कूल से अगर 20 मिला तो 85 तो यहीं हो जा रहा है। लेकिन कैसे होगा? अब मुंह का बोली से तो होगा नहीं कि हम बोल दिए 40 में 30 तो आपको मिल जाएगा, और हम बोल दिए 40 में 35 तो वो भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या नहीं पढ़ना होगा, और कैसे पढ़ना होगा। तो देखिए, ग्रामर में हम लोग का सबसे पहले ग्रामर शुरू करते हैं। ग्रामर में हम लोग का 4 मेन टॉपिक्स है। एक कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज, एक ग्रामर में ग्रामर सेक्शन हम जो कि मतलब एरर करेक्शन ये सब है। उसके बाद फॉर्मल लेटर है आपका 5 मार्क्स का, और एक एनालिटिकल पैराग्राफ है 5 मार्क्स का। तो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ करने का है नहीं, उसमें आपको अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो 2-3 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि मोर देन इनफ होगा, और 20 मार्क्स उसमें आपको कहीं नहीं जाएगा। इसमें 20 में आप 18-19 आराम से लाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ग्रामर। इसमें आपको टाइम देना होगा। कितना टाइम देना होगा? मान के चलिए आपको ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर देना होगा, सब मिलाकर 5 से 6 आवर। क्यों? 2 घंटा टेंस टेंस पढ़ने के लिए, 1 घंटा आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ने के लिए, 1 घंटा आपको मॉडल्स पढ़ने के लिए। मतलब ऑन एन एवरेज कहा जाए ना कि आपको पूरा लैंग्वेज में 8 घंटा देना होगा, पूरा लैंग्वेज के लिए। तो ग्रामर में क्या आता है आपका? एरर करेक्शन में टेंस का कोई मिस्टेक रहेगा वो आपको पहचानना होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा, कोई वर्ड रहेगा जो कि मतलब गलत यूज़ किया हुआ है उसको सही से यूज़ करना होगा। और क्या रहेगा? यही सब रहेगा। मतलब 10 क्वेश्चन इसमें रहता है 10 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। फॉर्मल लेटर क्या आएगा? उसमें 5 मार्क्स का आएगा। उसमें बेसिकली 95% चांस है कि आपको एक लेटर मिलेगा, लेटर टू द एडिटर। तो उसमें क्या कर सकते हैं ना आप, लेटर के लिए आपको फॉर्मेट याद करना होगा। फॉर्मेट याद करना होगा मतलब जैसे कि सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, उसके बाद 1 लाइन गैप, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट नेम, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना होगा। क्यों? उसमें भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। फिर आप क्या करिए ना कि ये जो लेटर है उसका जो स्टार्टिंग पैरा है, जैसे कि हम लिखते थे कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ ए पॉपुलर डेली आईड अंडरस्टैंड वांट टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, जो एडिटर का जो लेटर है, तो वो आप याद कर सकते हैं। क्यों? अगर अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा स्टार्टिंग में कि हाँ भाई बंदा को फॉर्मेट भी आता है, स्टार्टिंग करने भी आता है, तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा ना। उसके बाद आप क्या करिए, जो एंडिंग पैराग्राफ है उसको भी आप याद कर लीजिए। जैसे कि आई शेल बी हाईली ग्रेटफुल, जो हम लोग क्लोजिंग लाइन जो होता है उसको याद करने से भी सही रहेगा। और बीच का जो मतलब बॉडी है वो तो आपको मतलब याद करने का है नहीं, क्योंकि जैसा क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। सो लेटर में आप फॉर्मेट याद कर लीजिए, और क्लोजिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन याद कर लीजिए। एनालिटिकल पैराग्राफ, इसमें क्या रहेगा, आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल में कितना बच्चा है, प्राइवेट स्कूल में कितना बच्चा है, ये एक डाटा दिया हुआ है। उसमें से देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा कि डाटा में क्या बताया जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम एक लिख दिए कि ये गवर्नमेंट स्कूल का डाटा है, ये प्राइवेट स्कूल का डाटा है, तो आपको ये देख के बताना होगा कि प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा है वो कम है गवर्नमेंट स्कूल से। तो ये जो मतलब डाटा दिया हुआ है ना, इसको आपको वर्ड्स में लिखना होगा, पैराग्राफ में लिखना होगा। यही है एनालिटिकल पैराग्राफ। सो इसमें भी आपको ईजिली आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें 5 मार्क्स है तो 4 मार्क्स आप इजिली स्कोर कर सकते हैं। लेटर में भी 5 में 1 मार्क्स तो आपका इसमें हो गया, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट में। बॉडी में आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएगा, तो 3 से 4 मार्क्स तो आप आराम से इसमें भी स्कोर करिएगा। तो लैंग्वेज में 40 में आप आराम से 30-35 आपको लाना ही होगा, तभी 85-80 मार्क्स आपको मिल पाएगा। तो ग्रामर 10 मार्क्स का हो गया, फॉर्मल लेटर, पैराग्राफ और पैसेज, ये तो इजी है। तो अब आते हैं लिटरेचर सेक्शन में। लिटरेचर में चैप्टर बहुत ज़्यादा है, 40 मार्क्स का है। 10 पोएम्स है, 9 फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर में से स्टोरी है, और 10 फुटप्रिंट्स बुक्स है। तो देखिए पोएम क्या है ना, पोएम आपको बहुत इजी है, मतलब एक एक पेज का पोएम है। तो उसको आप चाहे तो एक दिन में 2 पोएम करिए, एक दिन में 2 पोएम, और 5 दिन में 10 पोएम हो जाएगा, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन मतलब कंफर्म है कि आएगा, वो भी मतलब 4 मार्क्स का। तो 2 पोएम आता है, दोनों में से जो आपको सही लगेगा वो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो कैसे पोएम पोएम और ये सब चैप्टर कैसे कवर अप करना है, तो क्या करिए, सबसे पहले एक यूट्यूब से कोई भी एक अच्छा चैनल से एक वीडियो देखिए पोएम का, ठीक है, मतलब
1.5x का स्पीड में या 1.25x का स्पीड में देखिए। उसके बाद वीडियो देखने के बाद बुक को रीडिंग करिए कि मतलब क्या दिया हुआ है पोएम में। उसके बाद क्या करिए, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड करिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि याद तो आप कर नहीं सकते। एक तो इतना पोएम है, इतना चैप्टर 10 9 19 29 चैप्टर है, तो उतना सबका याद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि पोएम लेक्चर देखिए, उसके बाद पोएम को रीड करिए, फिर कहीं गूगल से या फिर बुक में अगर दिया है तो उसका समरी रीड कर लीजिए कि पोएम बेसिकली क्या बता क्या रहा है और पोएम का मतलब मेन कहने का बात क्या है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना पोएम से तो आपको आइडिया होगा, तो आप लिख पाइएगा आराम से। और वन क्वेश्चन कन्फर्म है 4 मार्क्स का आएगा, सिर्फ एक तो कन्फर्म है, 2 3 भी आ सकता है लेकिन एक कन्फर्म है। फिर देखिए जैसा 4 मार्क्स है, ये है एक 4 मार्क्स है, इन दोनों में से भी क्वेश्चन आएगा, या तो इसमें से एक आता है, मतलब और में रहेगा, मतलब और दिया रहेगा कि इसमें से एक क्वेश्चन और इसमें से एक, तो दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, 4 मार्क्स का वो भी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए भी वही आपका मतलब स्ट्रेटेजी है कि आप सबसे पहले यूट्यूब लेक्चर देखिए, उसके बाद उसको एक बार रीड करिए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हैं। याद तो मतलब याद करने में तो टाइम जाएगा, तो उसको रीड कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और देखिए कि एक ही टाइप का क्वेश्चन अगर ज़्यादा बार पूछा गया है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो फुटप्रिंट्स हो गया, सॉरी मतलब प्रोज हो गया, तो इन दोनों में से एक आएगा 4 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप का, और फिर आएगा कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आएगा 3 3 मार्क्स का, फिर लॉन्ग भी आएगा 6 6 मार्क्स का। तो चैप्टर सारा करना है, छोड़ना नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब ये किए ये किए ये नहीं किए, ये किए ये किए ये नहीं किए, करना सारा है। लेकिन एक दिन में आप 2 2 चैप्टर करना होगा। सबसे पहले पोएम करिए, 2 पोएम करके 5 दिन डेली। उसके बाद ये चैप्टर अगर लंबा चैप्टर है, मतलब एक दिन में 2 हो पाए तो और भी ज़्यादा बेहतर है। अगर एक भी हो तो फिर भी 19 दिन नहीं हो पाएगा, 2 करना ही होगा, 2 करना हो कैसे भी करके। और मतलब टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। मतलब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है ना, इसमें मतलब अगर आप देखें ना, अभी ग्रामर में जैसे कि बताएं, इसमें 40 में आपको 30 35 मार्क्स कहीं नहीं गया है। लिटरेचर में भी जैसे एक पोएम तो कन्फर्म है कि आएगा, 5 दिन में मतलब एक 4 मार्क्स आपको कन्फर्म हो गया कि वो तो आना ही आना है। इसमें से भी कोई एक आएगा, लेकिन चैप्टर ही इतना ज़्यादा है। और कुछ तो आप पढ़े होगे, मतलब पहले से, मतलब ऐसा तो नहीं कि 29 चैप्टर आप पढ़े नहीं होगे, कुछ तो आप जरूर पढ़े होगे। सो you can easily score 30 to 35 marks in literature also। और सेम स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है हिंदी में भी, सेम, कुछ अलग नहीं उसमें। बस से इस मार्क्स डिवीज़न है, उसमें भी स्टोरी बुक्स है, उसमें भी सेम आपको ऐसे ही पढ़ना है, यूट्यूब से देखना है, फिर बुक रीडिंग करना है। बस ग्रामर का जो टॉपिक्स है उसमें भी पैसेज है आपका, और ग्रामर में जो है उसमें भी आपका क्या क्या है, पद परिचय है, ये सब कुछ टॉपिक्स है, सेम है मतलब, तो उसको भी आपको ऐसे ही कवर अप करना है। तो हिंदी तो हमको जहाँ तक लगता है आप लोग उतना टाइम दिए नहीं होगे अभी, तो अभी टाइम दीजिए। मतलब डेली अगर आप 1.5 आवर इंग्लिश के लिए और 1.5 आवर हिंदी के लिए दें, मतलब 3 घंटा, तो मतलब मान के चलिए आपको 200 में 170 180 मार्क्स ये दोनों दे देगा, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता है। आप कुछ भी नहीं पढ़ें तो भी आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हो 170 180 मार्क्स। अगर आप पढ़े पहले से तब तो आप 190 भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वही मैथ्स साइंस एसएसटी उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैथ्स में अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो मतलब 20 दिन में 20 चैप्टर तो आप कर लीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए ना एग्ज़ाम में उसको सॉल्व करने के लिए, तो जो कि आपको मतलब अगर पहले से आप किए हैं तभी हो पाएगा। तो लिटरेचर में आप आराम से हो पाएगा, मगर अगर आप और एफर्ट डालिएगा तो। और ज़रूरी नहीं कि मतलब 8 ही घंटा पढ़ना है, अगर आप पढ़ पाएँ तो 9 करिए, 10 पढ़िए, लेकिन मिनिमम 8 आवर्स तो पढ़ना ही है। 10 करिए तो और अच्छा है, क्योंकि अभी स्कूल तो जाना है नहीं। आराम से आप सुबह में पढ़िए 4 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, और शाम को जितना हो पाए रात में। तो बस हिंदी के लिए अलग से नहीं बता रहे, लिटरेचर और हिंदी का सेम है, सेम रहेगा, मतलब उसमें कुछ अलग नहीं होगा, उसमें भी सेम आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें बात करेंगे मैथ्स के बारे में, साइंस के बारे में, एसएसटी के बारे में, कि कैसे इन तीनों को आप मतलब इन तीनों को मार्क्स को आप स्कोर कर सकते हैं, स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं 20 डेज में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर कर सकते हैं अगर कोई आपका फ्रेंड है जो कि 10 का एग्ज़ाम देने वाला है। और इसमें टाइम नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में और शेयर करने में, जस्ट 5 सेकेंड लगेगा, जस्ट 5। ट्राई, विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देखिए। टिल देन बाय, थैंक यू।